Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim Abbas, Manager Coordination, and I welcome you all once again on today's webinar on SLOs. And today we will be discussing it subject-wise, that how is it important subject-wise, and we will be discussing chemistry and maths today. And we have very renowned educationists of the city with us. So we have Sir Professor Abdul Hasib, who is the principal of Askria School and College Boys in Southern Campus, and then we have Sir Abrar, Professor Abrar, who is the head of department of mathematics at Askria School and College Boys in the Southern Campus. Then we have renowned educationists of Rawalpindi and Islamabad and nationwide, Sir Professor Javed, who would be discussing the things about the chemistry. So thank you very much for the panel to be here. Thanks a lot. And सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा brief introduction about Askria education system, and then we are going to start the session, inshallah. So Askria schools and colleges are the projects of Askria education system, and we have 5 campuses in Rawalpindi and Wakand. Our first campus is Askria School and College Boys Wing Southern Campus. Then we have Askria School and College Girls Wing Southern Campus. Then we have Askria School and College Gulzare Kite Campus, and then we have Askria School Comprehensive Branch, where we have classes from Montessori to grade 10, and it is situated at Adiala Road campus near Faja Corporation Chowk. Then we have our one campus, Askria School and College Boys Wing Walk-in campus, which is having the classes from grade 8, 9, 10, first year and second year. We have different achievements in academics as well. So we have topped the federal board for the 6 times. First of we topped the board in year 2011, and then we topped the federal board and got first position in the year 2012. Then we secured 2 positions in the year 2013. We got first position in humanities, and we were the second highest marks achiever in 2013. Then we secured first position in metric as well in humanities group, and we got this position in 2017. Then we got first position in 2020, and we got this position in college in general science group. And we have different achievements in co-curricular and extracurricular activities, and we are the topper of federal board at all Pakistan level in Qiraat competition. Then we have got first position in all Pakistan level at federal board in Naat competition as well. We are the topper and first position holder of Urdu speech competition at all Pakistan level in federal board. We have secured first position in English speech contest as well in all Pakistan level at federal board, and we have got first position for 3 times in Milli Nagma competition in all Pakistan level at federal board. Then we are the 4 times Taekwondo championship. We got 4 times consecutive trophy of Taekwondo championship, and this is all about Askari education system. Thank you very much. So now I would like to hand over the session to Sir Professor Abdul Hasib, who is the principal of Askari School and College Boys Wing Southern Campus. Sir, session is handed over to you, please. Thank you, Sarvasi. Dear students, last time हमने ये शुरू की एक चीज़ तो आपको पहले भी बताई थी कि SLOs क्या होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो आप क्या हासिल कर रहे हैं क्लास के दौरान अपने टीचर से पढ़ते वक्त, वो एक आपका लॉन्ग टर्म एकेडमिक गोल होता है जिसके ऊपर आपकी तमाम आगे की तालीम का इन्हिसार होता है। अब उसकी जो अलाइनमेंट की है फेडरल बोर्ड ने आपके तालीमी लेवल के साथ, इल्मी लेवल के साथ, उसको उन्होंने क्वेश्चन वाइज 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये मैं शॉर्टली पिछले दफ़ा वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, SRQs शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जिनको हम नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस कह देते हैं,
एंड ERQs मीन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जिनको हम नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, जो 2 या 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब इसके जो कॉग्निटिव डोमेन्स की हैं वो 3 हैं कि आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर का 30% होंगे, जबकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस 50% होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो 20% वेटेज रखते होंगे। इन तीनों को मिला के आपका एक मुकम्मल पेपर जो है वो बनेगा। अभी मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें आपने बिल्कुल इस चीज़ से नहीं घबराना कि ये कोई नई चीज़ आ रही है या कोई नए क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई अलग से क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चंस हैं जो आप पहले पढ़ते रहे हैं, अभी उनको नॉमेनक्लेचर नया कर दिया, मसलन नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। अब इन क्वेश्चंस के 3 लेवल्स हैं, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल। तो ये 40% आपके पेपर में इजी क्वेश्चंस होंगे, 40% मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे और 20% आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। पहले भी ऐसा ही होता था, एक वक्त में हमें याद है फेडरल बोर्ड में 33% भी ये रही है कि 33% इजी क्वेश्चंस, 33% मॉडरेट क्वेश्चंस और 33% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो अभी डिफ़िकल्ट की परसेंटेज कम की भी है, इसका मतलब है कि आपका पेपर निस्बतन आसान होगा। क्या आपको जो चीज़ समझाई वो दोबारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये चीज़ें आगे किस तरह उसकी की वगैरह जो है वो बनेगी, ये उसके लिए एक टर्म पिछली दफ़ा भी आपको समझाई थी, उसे हम कहते हैं रूब्रिक्स। रूब्रिक्स वो आपके आंसर के वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी बेस पे आंसर डेवलप होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बिल्कुल फिक्स होती हैं, उनसे हटा के लफ्ज़ कोई भी नहीं लिखा जा सकता, जिसके लिए आपको उस चीज़ को उसी तरीके से लिखना, याद करके लिखना ज़रूरी होता है। तो वो किस तरह की एग्जांपल्स होंगी वो भी अभी हम जब सर जावेद के साथ ये डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ भी उनसे पूछ लेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन आज हमने और मैथमेटिक्स का आपके लिए रखा, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद कि आप स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को कैसे समझ पाए हैं। अब सब्जेक्ट वाइज हमारी ये सीरीज़ शुरू हो रही है, जो इस हफ्ते हम 2 सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम 2 सब्जेक्ट्स करेंगे, और इस तरह अगले चंद हफ्तों में हम ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो आपको SLOs बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है वो समझाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और आपके लिए वो पेपर इंशाल्लाह आसान होगा जो फेडरल बोर्ड में आएगा। तो मैं अब माइक हवाले कर रहा हूँ सर जावेद के, जो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें समझाएंगे। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, सबसे पहले तो चंद चीज़ें क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि बेटा कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि हम केमिस्ट्री में कौन सी बुक फॉलो करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नेशनल फाउंडेशन, कुछ कह रहे हैं कि KPK की, और कुछ कहते हैं बलूचिस्तान बुक। तीनों बुक क्योंकि रेफरेंस बुक में डाली गई है। तो बेटा एक ये है, आप इस चीज़ को क्लियर रखें कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उसको फॉलो करें। आप देखेंगे कि इन तीनों में जो टॉपिक हैं वो सब कॉमन है। अब कुछ बच्चे हमसे ये सवाल भी कर रहे होते हैं कि सर ये जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एप्लीकेशन कुछ चेंज हैं, जैसे हम देखें तो बलूचिस्तान की बुक में खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस ऐसे बच्चे पढ़े हैं जो उनको लगता है कि हमने नहीं पढ़े हुए। तो वो बच्चे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो हमने कैसे उसको कैसे कवर करना है। तो बुक आपके पास जो भी है बेटा, आप एक तो क्लियर कर लें कि आप उस बुक को फॉलो करें। दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3 तरह के हैं, जिसमें
अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास जो कि आपको पता है कि 2 SLOs के पेपर आ चुके हैं, मॉडल पेपर्स जो है वो फेडरल बोर्ड की तरफ से आए हैं, और उन दोनों पेपर्स के अंदर हमने ये किया हुआ है, देखा भी है कि जो या तो क्वेश्चन सिंपल वर्डिंग के साथ आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है, लॉ आ रहा है, स्टेटमेंट आ रही है, या कुछ सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो उसको वो कह रहा है कि बुक की रीडिंग से जो चीज़ हासिल हो जाए उसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये जो हमारे पास केमिस्ट्री के लिहाज से, चाहे वो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जो रीडिंग से चीज़ आपको जस्ट क्लियर हो जाती है कि बच्चा रीड किया हुआ है तो उसको सिलेबस गो थ्रू किया हुआ है, तो वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहा कि व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, देखें आपने उसने नाम बता दिया बफर सॉल्यूशंस क्या है, एलेबोरेट द सूटेबल एग्जांपल्स, देयर सिग्निफिकेंस एंड एसिड बेस रिएक्शन, राइट देयर कॉमन एप्लीकेशंस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में सिंपल वर्डिंग में लिखा गया है। तो इस तरह के ये भी मैं कह सकता हूँ, डिफाइन कॉमन लॉ, कॉमन इन इफेक्ट एंड गिव देयर एग्जांपल, या मैं कहता हूँ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गिव देयर एप्लीकेशन। तो ये बेशक इसको हम क्वेश्चन को समझ लें, लेकिन ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो बुक की रीडिंग करेगा उसको आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बेटा अगर हम इससे हट के चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिहाज से, फिजिक्स के लिहाज से अगर मैं आपके बच्चों को हेल्प करूं तो ये हमारी देखे गए कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, खासकर सेकेंड ईयर में तो चले नहीं है उस तरह, लेकिन फर्स्ट ईयर में जितने न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो आप न्यूमेरिकल टाइप चीज कर रहे हो वो एप्लीकेशन बेस्ड है, वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे मॉडल्स पेपर्स आए हैं, SLOs के पेपर आए हैं, उनमें जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर जो फर्स्ट ईयर में हमें नजर आ रहे हैं वो हमें न्यूमेरिकल बेस्ड चीज नजर आ रही है। लेकिन इसमें ये है बेटा कि न्यूमेरिकल में टेक्निकली चीजें, यानी उससे कुछ ऐसा फार्मूला जो आपको डायरेक्टली फार्मूला बुक में नहीं है, तो उसको आपने थोड़ा बहुत अरेंज करके उसको सेट करना। जैसे ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चे ने किसी ने प्रैक्टिस किया है तो इसको अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि N2 + H2 अमोनिया बनता है, Kc सिंपल वाला लिखते हैं, जबकि उसने लिखा ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर Kc। तो बच्चों ये आपने एप्लीकेशन पढ़ी होंगी जिसमें हमारे पास देखिए केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, उसमें हम एक रिएक्टर को A मोल सपोज करते हैं, दूसरे को B मोल सपोज करते हैं, और प्रोडक्ट को टाइम 0 है तो हम 0 मोल सपोज करते हैं, और फिर जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो प्रोडक्ट X मोल बनता है, तो रिएक्टेंट A - X B - X, उस मेथड से आप इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ये है कि इसको आपने देखना है कि एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज़ है वो न्यूमेरिकल चीज़ है, लेकिन कोई अनसीन चीज़ नहीं है, वो आपकी किताब के अंदर से चीज़ है, लेकिन उसको थोड़ा सा वो टेक्निकली कहीं ना कहीं से वो केमिस्ट्री के अंदर मैंने देखा है कि वो घुमा रहा है। तीसरी चीज़ अगर हम आ जाएं, ये तो फर्स्ट ईयर अभी मैं बातें कर रहा हूँ, तो सेकेंड ईयर की भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखें, अगर मैं आपसे कहता बेटा कि आप ऐसा करें कि सपोज करें मैं आपसे कहता कि क्वांटम नंबर में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर दें, या आपसे मैं कहता एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर दें, या मैं आपसे कहता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर दें, तो बेटा ये सिंपल मैंने नाम ले लिए, आपकी किताब में नाम लिखे हुए हैं, आप फौरन पिक कर जाते हैं और हर बच्चा इसको परफॉर्म कर जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास केमिस्ट्री में बन रहे हैं बच्चों, ये जरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आप अगर एक टॉपिक को टेक्निकली अच्छे तरीके से समझा होगा तो उस टॉपिक के अंदर जो क्रक्स है उससे क्वेश्चन बनाता है। जैसे देखें बेटा, अगर मैं आपसे कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल की शेप बनाएं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट ये कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा, मैंने कहा देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब शेप ऑफ सब शेल व्हेन द वैल्यू ऑफ L आर 0, 1 and 2। तो देखो मैंने एक स्टेप आगे चला गया। अब बच्चे ने सोचना है कि L कौन सा क्वांटम नंबर है, तो पहले तो उसको उस पे जाना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा इस पे कि L जो है हमारे पास, ये बेसिकली आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और फिर मैंने कहा L की वैल्यू 0 हो तो उस ऑर्बिटल की शेप बनाओ। अब उसको खुद सोचना है कि L की वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल के लिए उस टॉपिक में उसने पढ़ी है। तो L की वैल्यू 0 होगी तो S ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 होगी तो P ऑर्बिटल, और L की वैल्यू 2 होगी तो D ऑर्बिटल। तो बेटा देखिए क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ उसने क्या किया, कुछ क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन क्रिएट करके आपको थोड़ा सा उसने देखा, चेक किया कि इस बच्चे को इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप है या नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। तो फिर एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट होंगी, लॉज होंगे, या आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जबकि अगर मैं आपसे कहूं एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये मोस्टली बच्चों आपके न्यूमेरिकल टाइप चीज होगी। फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप चीज होगी, जो बेसिकली आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करते हैं और उसको आप सॉल्व करते हैं।
और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली आप उस टॉपिक को, अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ है तो उस टॉपिक को वो यूज करते हुए उस टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। इस चीज को आपने देखना है। ये तो मैंने बेटा आपको फर्स्ट ईयर के लिहाज से बताया। अब सेकंड ईयर के लिहाज से, क्योंकि सेकंड ईयर में कुछ ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वहां न्यूमेरिकल सिर्फ एक चैप्टर के अंदर है और वो भी 24 में 2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो बेटा इस चीज को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर 13 चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने क्वेश्चन को कैसे चेंज किया कि एक बच्चे ने रीड किया हुआ है, डिस्क्राइब पेकुलर बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, गिव 7 मेन डिफरेंसेस। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं और उसका फर्स्ट मेंबर बेरिलियम है। तो बच्चों बेरिलियम के 7 डिफरेंसेस लिखने थे। तो ये थोड़ा सा बच्चे को, अगर जस्ट उस बच्चे ने रीड किया हुआ है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है कि यार अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी है, उसको पता है, उसने रीडिंग की होती है बुक में, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट। और फिर उसको ये भी पता होता है कि ये जो उसका फर्स्ट मेंबर है अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो बेरिलियम है, उसके जो बेसिकली 7 डिफरेंसेस हैं, 11 हम पढ़ते हैं तो उसने 7 डिफरेंसेस आपसे पूछ लिए। तो ये आपके पास एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आपने बुक की रीडिंग की हुई है तो आपको वो डिफरेंसेस याद हैं, आप लिख सकते हैं। अगर हम इस पे आते हैं नेक्स्ट पे, अंडरस्टैंडिंग बेस। अब जो अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन है ये हमारे पास है कि अगर हम देखें, ये सबसे मैंने कहा था कि ये बच्चों मुश्किल पोर्शन होता है केमिस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये टेक्निकली क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन क्रिएट होता है। डिफाइन आइसोमेरिज्म, ये तो बच्चे ने पढ़ा हुआ है, लेकिन आगे उसने क्या किया, उसने कहा मेक ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H10O2, क्लासिफाई ईच गिवन IUPAC ने। तो बच्चों अब देखिए उसने तो आइसोमेरिज्म की बहुत सारी टाइप पढ़ी है। उसने तो पढ़ा है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फिर उसने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, फिर उसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। तो मैंने तो कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर अपने बनाने, इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर चेन आइसोमेरिज्म में से भी इसकी एग्जांपल बना सकते हैं, पोजीशन से भी बना सकते हैं, फंक्शनल से भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसकी मेटामेरिज्म से भी बना सकते हैं, टॉटोमेरिज्म से भी बना सकते हैं। लेकिन ये आपकी बुक में आप डायरेक्ट नाम दे देता कि आप ड्रा द चेन आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो आप उसके चेन आइसोमर फौरन बच्चा बना देता है। इसी तरीके से मैं पोजीशन आइसोमर का हूँ, फौरन बना देता है। लेकिन अगर मैंने एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला देके उन चारों पांचों की टाइप का मिक्स क्वेश्चन पूछ लूं तो ये बच्चा वही करेगा जिसने उस टॉपिक को समझा हुआ है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए बच्चों इसको देख लें कि आप इस तरीके से ऑर्गेनिक में चीजें आ सकती हैं। अब इसी तरीके से अगर हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ सेकंड ईयर में क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर चीजें यूज हो रही हैं उनको वो ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में शामिल कर रहा है। जैसे वो कहता है कि एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एज ए रिजल्ट इन क्लाइमेट चेंज। तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करना है, और ये हम डेली लाइफ के अंदर हमें पता भी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। तो उसके ऊपर बच्चा अपनी तरफ से, मतलब अपने एनवायरनमेंट से कुछ चीजें वो ऐड कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों के ज़हन में होता है कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे मैं ऑर्गेनिक से एक बच्चों टॉपिक उठा रहा हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको पता है कि इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। अगर मैं एक ही टॉपिक में से तीनों तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ऐसे नहीं है कि टॉपिक टू टॉपिक चेंज होंगे, एक ही टॉपिक आपकी बुक के एक्सरसाइज में से भी उस क्वेश्चन को वो खुद ही कह सकता है कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, ये एप्लीकेशन बेस है, ये नॉलेज बेस है। वो उसको देख के क्वेश्चन को देख सकता है। जैसे मैं आप इसमें से 3 क्वेश्चन क्रिएट करने लगा। अगर मैं कहूँ हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, गिव इट एग्जांपल, तो ये बच्चे ने पढ़ी हुई है किताब, वो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को वो लिख सकता है। उसको पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, कोई 1-2 रिएक्शन लिख देने हैं बस, ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो। अब मैं आप कहता हूँ एप्लीकेशन बेस, ये अप्लाई कहाँ पे होता है। देखिए एप्लीकेशन बेस ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि हेलोफॉर्म रिएक्शन किन कंपाउंड्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, उन कंपाउंड्स के नाम लिखिए। जैसे आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में जस्ट एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये टेस्ट देता है। सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन के सेकंड कार्बन पे OH मौजूद हो वो ये टेस्ट देते हैं। टर्शियरी अल्कोहल ये देते नहीं है। एल्डिहाइड में वाइड एक एल्डिहाइड देता है, एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से कीटोन में वो तमाम कीटोन जिनके कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट मिथाइल है वो ये टेस्ट देते हैं। तो ये देखें बच्चों, एक क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया एप्लीकेशन बेस के, ये कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपने बता दिया कि ये प्राइमरी अल्कोहल में यूज हो रहा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल में यूज हो रहा है, ये एल्डिहाइड में एक केस में यूज हो रहा है, ये
कीटोन के केस में यूज हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन आपको उसकी सारी याद है। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, देखिए अब मैं इसे कंसेप्चुअल बनाता हूँ, मैं यानी इसको मैं अंडरस्टैंडिंग बेस बना रहा हूँ, एप्लीकेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग बेस। अब बच्चे को मुझे पता है कि ये कंसेप्ट क्लियर है, ये किताब की वो सारी एग्जांपल उसने याद की। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बच्चों, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन बाय मींस ऑफ केमिकल टेस्ट। अब एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन को कैसे अलग करेंगे बाय मींस ऑफ केमिकल टेस्ट। तो देखिए बच्चों, अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है कि देखो एसीटोफिनोन भी एक कीटोन है और बेंजोफिनोन भी एक कीटोन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक के कार्बोनाइल के एक साइड पे मिथाइल आ रहा है, एसीटोफिनोन में देखें तो एसीटोफिनोन यही होता है बच्चों, कार्बोनाइल के एक साइड पे मिथाइल हो, एक साइड पे C6H5 हो, फिनाइल हो। और बेंजोफिनोन क्या होता है बेटा, जिसके दोनों साइड पे फिनाइल हो, डाइफिनाइल कीटोन भी उसको बोलते हैं। तो देखो आपने कीटोन में ये क्या चीज पढ़ी थी, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो कीटोन जिनके कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट मिथाइल हो ये टेस्ट देते हैं, तो एसीटोफिनोन ये टेस्ट दे जाएगा, येलो क्रिस्टल बना जाएगा आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जबकि बेंजोफिनोन नहीं बनाएगा। तो इस तरह के बच्चों ये क्वेश्चंस होते हैं, इनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें तो ये आपकी किताब के अंदर से ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल पेपर नहीं आ रहा होता। वैसे केमिस्ट्री वाले हम ऑलरेडी इससे फैमिलियर होते हैं बेटा, हमारी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से नहीं SLOs के मुताबिक आ रही, हम पहले भी SLOs के मुताबिक ही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, और वो भी ये है कि वर्डिंग चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वर्डिंग चेंज होने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर हम इस तरह के क्वेश्चन खुद ब खुद मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मॉडल पेपर से देखते जाएंगे तो हम खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है। तो बस हमें क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, उस टॉपिक को रीड करके क्वेश्चन इस तरह के हमें अगर कोई टीचर प्रोवाइड कर दे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पे इस तरह का, तो मेरे ख्याल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फेडरल बोर्ड के पेपर में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप कोई सवाल करना चाहें तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आप अपने प्लीज हैंड रेज कीजिए जो स्टूडेंट्स सर जावेद से क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर जावेद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे वक्त निकाला, और स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली इसमें से बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा। तो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज़ हैंड रेज कीजिए। मिस जोया है, मिस जोया एमन का मैं माइक जो है वो इस वक्त अनम्यूट कर रहा हूँ। मिस जोया, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। मिस जोया, आपका माइक अनम्यूट किया है, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकती हैं। माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। जी मिस जोया, अब आपकी आवाज शायद आ रही है, आप प्लीज माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। के अलावा जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपका माइक जो है वो अलाउ करें ताकि आप बातचीत कर सकें। जो है आपको अलाउ किया गया माइक, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। सर जावेद, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने आज वक्त निकाला और बच्चों को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई जिनका स्टूडेंट्स को डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो अब मैं दावत दूंगा सर प्रोफेसर अबरार से कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, और उनके हैंड ओवर किया जा रहा है सेशन। सर अबरार जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मैथमेटिक्स के अस्क्रिया स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ विंग सदर कैंपस में, और माशाल्लाह एक अरसे से जो है यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तालीमी मामलात के अंदर। तो सर थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला आज बच्चों के लिए जो ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया, और डेफिनेटली ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा क्योंकि आज माशाल्लाह हमारे पास रिनाउंड एजुकेशन प्रोफेसर जो है वो माशाल्लाह वेबिनार के अंदर शामिल हैं। तो सर इब्रार सर हैज सेशन इज हैंडेड ओवर टू यू प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abrar Mahmood. मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा बेटा, ये फेडरल बोर्ड ने
तकरीबन 3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन भी मौजूद है और थर्ड मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। तो अभी ये मॉडल पेपर नंबर 2 है आपके सामने। इसमें मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन बी, क्योंकि MCQs में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वहाँ से आपको बात मेरी सही समझ नहीं आएगी। तो यहाँ से सेक्शन बी और सी से जब आप समझेंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स, वही सेम नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस्ड बातें जो हैं वो MCQs पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये देखें फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है वहाँ से ये लिया गया है। अब इसमें ये एज इट इज़ क्वेश्चन मौजूद नहीं है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इसमें वो लिख रहे हैं कि अगर z = √2 माइनस आयोटा है, शो करें z² + z conjugate square इज अ रियल नंबर एंड सेकंड पार्ट z - z conjugate होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब ये जो पार्ट ए और बी हैं ये एज इट इज़ क्वेश्चन 1.3 में मौजूद है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। यानी वहाँ पे वो जनरली उन्होंने लिखा है कि प्रूव फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, यानी एनी कम्प्लेक्स नंबर पे ये चीज़ होल्ड करेगी। तो यहाँ पे समझे उन्होंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो अब आपको इसका आइडिया है कि कम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन हो तो उसका हम कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका कंजुगेट हम कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का हम साइन चेंज कर देंगे, तो वो आ जाएगा z कंजुगेट इज इक्वल टू √2 प्लस आयोटा, और फिर इस ए पार्ट में पुट कर देंगे z² + z कंजुगेट स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो एंड पे आंसर सिर्फ रियल पार्ट आ जाएगा, और इसी तरह सेकंड पार्ट भी। तो ये देखें, ये क्वेश्चन आपके पास नॉलेज बेस आ गया कि आपको नॉलेज है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, उसके कंजुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर जो भी एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का, वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 लॉजिक जो 2.4 और 5 है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया और बिल्कुल आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है। लिखा हुआ है कि P implies Q = not P and not Q। तो आपको लॉजिक का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है तो उसमें देखें, इसमें एंड ऑपरेशन भी यूज़ हो रहा है, नॉट ऑपरेशन भी यूज़ हो रहा है, और इफ देन इम्प्लाइज ये कंडीशन भी यूज़ हो रही है। तो अगर आपको वो सारे ऑपरेशन याद हैं तो अब क्वेश्चन जैसा मर्जी बन के आ जाए आपके लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एंड ऑपरेशन का क्या मतलब है, नॉट ऑपरेशन का क्या मतलब है, और इफ देन इम्प्लाइज क्या था। तो ये भी आप बिल्कुल जस्ट 2-3 लाइन्स के अंदर आसानी से टेबल बना के कर सकते हैं। इसी तरह देखें, थर्ड नंबर जो पार्ट है ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे मर्जी उसके अंदर लिख दी जाएं। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है और उसने ये कहा है ए पार्ट में ये कोफैक्टर फाइंड करें। तो कोफैक्टर आपने 3.3 के साथ सीखा हुआ है, और इसी तरह 3.3 के साथ उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी सीखा। तो बिल्कुल कह लें कि आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन जैसा मर्जी यानी उसमें वैल्यूज आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। ये चैप्टर 4 से क्वेश्चन है जिसमें हमने 4.8 और 4.9 जहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, कि हमें 2 इक्वेशंस गिवन है और उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट की जाए। तो यहाँ भी देखें, अब इक्वेशन जैसे मर्जी वो बना दे, आपको उसमें तकरीबन 5-6 किस्म के क्वेश्चन हैं कि कैसे x को फ्री करना है, या x² को फ्री करना है, या y² को, या y को, जो भी। अब जैसे ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और एक लीनियर फॉर्म है, यानी पहली जो इक्वेशन है वो x की सूरत में क्वाड्रेटिक है और सेकंड जो है वो x और y की सूरत में लीनियर है। तो आप यहाँ से अगर y को फ्री कर दें, 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 11x - 2, तो ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी। पहली इक्वेशन में पहले x के 2 आंसर आ जाएंगे, फिर उसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y के भी 2 आंसर आ जाएंगे। और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों ने जो एक्सरसाइज 4.7 नेचर ऑफ रूट वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें नेचर ऑफ रूट पढ़ी थी कि रूट्स कब रियल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं, एंड सो ऑन। तो ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, यानी एग्जैक्ट ये नहीं, मिलता जुलता क्वेश्चन उसमें भी है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। फर्स्ट हम x², फिर x, फिर कांस्टेंट, और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac।
और आगे उसको ये कंडीशन जो दी गई है P इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, कि आप P की जगह Q पुट करें या R पुट करें, इसी तरह Q की जगह P पुट करें या R पुट करें, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 देखें, सिंपल ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और ये कौन सी टाइप का है, टाइप 3 का, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है डिनोमिनेटर में x² माइनस x प्लस 1, ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है, तो ये टाइप 3 आ गया। अब इसमें वैल्यू जैसे मर्जी आ जाए, आपको तरीका पता है कि हमने टाइप 1 को कैसे ब्रेक करना होता है, टाइप 2 को कैसे ब्रेक करना होता है, टाइप 3 को कैसे ब्रेक करना होता है, एंड सो ऑन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 7 है, ये BCPQRR इन AP, ये 6 चैप्टर का टॉपिक है। तो आगे उसने एक कंडीशन बना दी है कि B प्लस आर इज इक्वल टू C प्लस Q इज इक्वल टू 2P। ये बिल्कुल कह लें कि डिफरेंट स्टाइल का उसने क्वेश्चन दे दिया है। ये आप इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, वो आप अगर मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेंगे उसका सोल्यूशन भी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह लें कि इसने कंसेप्चुअल डाला है, यानी ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये आसान नहीं है कि आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाएं। यही सेम 6 चैप्टर है, pth टर्म ऑफ HP Q है, qth टर्म P है, आपने PQth टर्म फाइंड करनी है, ये भी कॉन्सेप्ट है। यानी ये इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, पूरे चैप्टर में नहीं दिया गया, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे जैसे आप वहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टॉपिक करते हैं, अगर आपने ये 6 चैप्टर किया हुआ है तो मुझे बात समझ आ जाएगी कि वहाँ पे HP में रहते हुए आप pth टर्म कैसे फाइंड करोगे, qth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और फिर ये वाली टर्म कैसे फाइंड करेंगे। HP जो है ये बजाते खुद कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, AP का। तो पहले हम सारा काम AP के अंदर करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, फिर जो भी आंसर आता है आखिर में उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो ये भी बिल्कुल उसी टेक्निक से ही होगा। इसके साथ देखें नेक्स्ट जो 9 नंबर पार्ट है, ये चैप्टर 7 जो शायद अभी तक बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 6, 7, 8 नॉर्मली हम एंड पे पढ़ते हैं। तो ये परमुटेशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें हॉकी एक वर्ड है जिसके के सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, HOCKEY। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर C और K को हम इकट्ठा लेके चलें तो फिर क्या ऑप्शन होगी, और अगर इकट्ठा ना लेके जाएं तो फिर क्या ऑप्शन होगी। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह की क्वेश्चन 7.2 में मौजूद है। वहाँ पे डिजिट्स के साथ ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे उसने लेटर के साथ ये क्वेश्चन दे दिया, तो बिल्कुल सेम, यानी ये क्वेश्चन आ गया। तो ये समझे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको नॉलेज है कि परमुटेशन कैसे की जाती है, और यहाँ पे अब आप उसी नॉलेज को बेस करते हुए कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, और इसको यूज़ करते हुए आप हॉकी के ये दोनों केसेस जिसमें C और K इकट्ठे आ जाएँ तो फिर कैसे करेंगे, और इकट्ठे ना हो तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, 9 देखें, इसमें ये चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 8 में 8.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह से मिलती जुलती कंडीशन है कि A और B अगर नियरली इक्वल हैं तो आगे कोई एक्सप्रेशन बता दें कि ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करें। तो अब इसमें जैसे वो कह रहे हैं कि A और B नियरली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। तो अब आप B + 2A ओवर A + 2B का आंसर ये लेके आएंगे A ओवर B का क्यूब रूट। तो इसमें भी समझें कि कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा 8.3 से, और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 11 नंबर पार्ट जो है ये समझे 9 चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल होती है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो कह रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये वैसे भी आइडेंटिटी होती है, ये 1 प्रूव करें। तो आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सीकेंट क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 12 ओवर 13। तो सीकेंट इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 13 ओवर 12, ये सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 5 ओवर 12। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, कोई इशू नहीं। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये भी 9.2 के साथ समझे हमने, 9.4 के साथ हमने 9.2 के साथ शुरू हो जाती है आइडेंटिटी, और टिल 9.4 तक ये कंटिन्यू रहती है। तो बिल्कुल देखें कि ये
अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है इसमें, यानी इस तरह का बिल्कुल एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होती है, तो आगे उससे वैल्यूज जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये सारा के सारा उसी अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसका 14 नंबर पार्ट है, ये आपने 12th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कोसाइन। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री, तो उम्मीद है कि आप बच्चों ने जिनका मैथ है उन्होंने पढ़ी होगी। लॉ ऑफ कोसाइन है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 bc कॉस अल्फा। तो वहाँ से आपने कॉस अल्फा को फ्री करना है, सेकंड केस में से कॉस बीटा को फ्री करना है, थर्ड केस में से कॉस गैमा को फ्री करना है। तो वो नॉलेज जो आपने वहाँ पे सीखा था, कॉन्सेप्ट लिया था, उसको यहाँ पे समझते हुए आपने यहाँ पे, यानी अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है और इसको एलसीएम वगैरह से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 15 नंबर पार्ट, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/2 39 इक्वल टू π/4। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन, एग्जैक्ट ये नहीं, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपने 13.2 में पढ़े हुए हैं, जिसमें कोई भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आ जाए या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आ जाए, तो आप उसके ऊपर फार्मूला यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें यह है कि जो फर्स्ट टर्म है ना 4 tan इनवर्स a, पहले आप इसको 1 टाइम करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? 1 टाइम करेंगे। अपने इसी में 13.2 के साथ फार्मूला पड़ा हुआ है 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। तो वहाँ से पहले आप इसको 2 टाइम लिखेंगे, यानी 2 बाहर लिखे 2 tan इनवर्स a, तो पहले एक दफ़ा 2 tan इनवर्स a चेंज होकर सिंगल tan इनवर्स में आएगा, उसको फिर जो बाहर वाला 2 है उससे मल्टीप्लाई करके एक और दफ़ा फार्मूला लगेगा। तो यानी 2 tan इनवर्स a जो है वो 2 टाइम फार्मूला अप्लाई होगा, तो फिर ये सिंगल tan इनवर्स आ जाएगा। उसके साथ फिर आप माइनस के बाद जो tan इनवर्स है ये अप्लाई आप करेंगे, तब जाके ये π/4 आएगा। तो समझिए कि ये जो फर्स्ट टर्म है 4 tan इनवर्स 1/5, ये 4 टाइम है टर्म। तो जब तक ये रिड्यूस होके टू ओवरऑल क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो 2 टाइम तक नहीं आता, तो इस पे आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये भी कह लें कि कॉन्सेप्ट है और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर जो इसका आखिरी पार्ट है, सॉल्व sin x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। ये अपने 14 चैप्टर में इसका आइडिया लिया हुआ है। 14 चैप्टर क्या चीज़ है? 14 चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो उसमें आपने देखा है कि ज़्यादातर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती हैं, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक करके या कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको फैक्टर बनाते हैं और फैक्टर बनाने के बाद फिर उसका अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखें, ना तो इसमें साइन की पावर 2 है, ना ही कॉस की पावर 2 है। तो जब तक फंक्शन स्क्वायर फॉर्म में ना हो, वो दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और इस हालत में रहते हुए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त में 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सिंपली इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें से साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। वो 1 जो राइट हैंड साइड पे 1 है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फार्मूला है? साइन 2x का, यानी साइन 2 अल्फा हमारे पास होता है ना, आप लोगों ने 10.3 के साथ पढ़ा था, डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो उसमें साइन 2 अल्फा आपने पढ़ा था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब अल्फा की जगह जो मर्जी वेरिएबल आ जाए, थीटा आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये जो प्रोडक्ट टर्म है 2ab वाली 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगी साइन 2x इक्वल टू 0। तो साइन का आंसर 0 होता है 0 पे और पाई पे। तो या वो फॉर्म लिख दें या जनरलाइज आंसर लिख दें कि 2x इज इक्वल टू n पाई, और फिर 2 को डिवाइड कर देंगे तो n पाई बाई 2 x का आंसर आ जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक 14 नंबर पार्ट, 15 नंबर पार्ट
और 10 नंबर पार्ट और 5 थोड़ा सा टेक्निकल उसने दिया है। तकरीबन इन 16 पार्ट्स में से 3 से 4 पार्ट्स उसने दिए हैं जो ज़रा ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। जब तक आपको उसका आइडिया नहीं होगा टॉपिक का, वो आप फिर कर नहीं सकते। बाकी बहुत से क्वेश्चन उसने इतने आसान दिए हैं, यानी मॉडल पेपर के लिहाज से इतने आसान दिए हैं कि बहुत आसानी से हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ओवरऑल कोई इशू नहीं। तो आपके पास चॉइस भी है, यानी आपने 16 में से 12 क्वेश्चंस करने। अगर हम फर्ज कर लें कि किसी एवरेज बच्चे के लिए ये चारों क्वेश्चन बहुत मुश्किल हैं, तो आप चारों माइनस भी कर दें तो बहुत आसानी से आप 12 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ 9th लेवल से 10th लेवल से करते आ रहे होते तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था वो बहुत हाई हो जाता, IQ लेवल बहुत अच्छा हो जाता, उसको क्वेश्चन को पिक करने की सलाहियत ज़्यादा होती। क्योंकि इससे पहले आप लोगों का फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का भी कोई आइडिया नहीं है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों का भी कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए इस साल उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आएगी। जहाँ पे उसने कंसेप्चुअल बात कर दी जैसे मैंने बता दिया, लेकिन वो भी बहुत कंसेप्चुअल नहीं होगी कि आप समझें कि उसकी कोई आपको सिर पैर ही नहीं मिलेगा। कोई एक आध पार्ट इतना कह लें कि अजीब सा आ जाए तो एक आध पार्ट की मैं चलो कह सकता हूँ, लेकिन बाकी मेरी कैलकुलेशन में 15 पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी समझ के टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर को पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना आता है, समझ आया हुआ है फार्मूला, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका सेक्शन सी देखें। सी सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 3.5 से है। 3.5 का आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ग्रामर रूल से सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 जो 3.5 का है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो उसने एक्विलेन फॉर्म और रिड्यूस एक्विलेन फॉर्म से करने को प्रैक्टिस दी हुई है। तो समझिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आ गया और इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। डेफिनेटली ये एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आया तो कोई मसला नहीं, जैसा मर्जी आ जाए। उसमें भी आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स थे, यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाली फॉर्म बनाएंगे, यानी पहले तीनों वेरिएबल के कोफिशिएंट आ जाएंगे और चौथा कॉलम जो होगा वो राइट हैंड साइड आएगा। फिर आपने प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे भी 0 करेंगे और ऊपर भी 0 करेंगे। तो जब ये प्रिंसिपल डायगोनल में 0 0 आ जाएगा तो ये रिड्यूस एक्विलेंट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट रो में x1 का कोफिशिएंट सिर्फ पड़ा हुआ है, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल में होगा 1। इसी तरह सेकंड रो में x2 का कोफिशिएंट 1 होगा और थर्ड रो में x3 का कोफिशिएंट 1 होगा। बाकी जो फोर्थ कॉलम में वैल्यूज होंगी वो रो 1 में x1 की वैल्यू होगी, रो 2 में x2 की और रो 3 में x3 की। या जैसा कि इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं x y z, तो फर्स्ट रो का वो x का आंसर आ जाएगा, सेकंड रो y का आंसर आ जाएगा और थर्ड रो z का आंसर है। तो ये सब समझो बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कोई चेंज बिल्कुल नहीं है, कोई उसने कंसेप्चुअल इसमें बात नहीं की। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाएं। Find the condition that one root of this equation may be 3 times the other, number 2 square of the other, number 3 additive inverse of the other and number 4 multiplicative inverse of the other। तो इसमें ये बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है 4.6 में से। वहाँ भी क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें इसी तरह की उसने बात की है कि क्या कंडीशन होगी इस गिवन इक्वेशन में कि एक रूट उसका ये हो जाए, डबल हो जाए, उसका स्क्वायर हो जाए, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन सेम दी गई है। तो वही तकरीबन सेम फोटोकॉपी उसने, यानी ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन उसने दे दिया कि आपने वहाँ पे इसका नॉलेज लिया हुआ है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उसका अल्फा स्क्वायर आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या 2 टाइम आ जाए या 3 टाइम आ जाए या 4 टाइम आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उसने ये क्वेश्चन समझे अंडरस्टैंडिंग बेस पे बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा उसने कंसेप्चुअल दे दिया। इसमें देखें 2 की पावर 1/4 है, फिर 4 की पावर 1/8 है, फिर 8 की पावर 1/16 है, फिर 16 की पावर 1/32 है एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस इन्फिनिट है। और ये जो क्वेश्चन है यानी इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे हमें मिलेगा, इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा 6th चैप्टर में, जहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा 6th चैप्टर तो उसको मेरी बात समझ आ रही होगी
कि 6th चैप्टर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम जब ज्योमेट्रिक सीरीज का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें एक केस आता है सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक टर्म्स, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो बेस भी चेंज हो रही है, पावर भी चेंज हो रही है। तो इसमें अगर इसी हालत में क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लेके चलने की कोशिश करेंगे तो वो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हम हल ये करेंगे कि क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट फॉर्म है, सीरीज में क्या होता है टर्म्स ऐड हो रही होती है, जबकि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, प्रोडक्ट फॉर्म आ रही है। तो हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग क्या करता है कि लॉग जब किसी प्रोडक्ट टर्म पे अप्लाई होता है तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड प्लस लॉग ऑफ थर्ड टर्म प्लस लॉग ऑफ फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो इस तरीके से टर्म्स प्लस भी हो जाएंगी और ये जो पावर्स हैं ये शुरू में आ जाएंगी और फिर वहाँ से इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यानी ये कंसेप्चुअल बेस है कि ये शायद हर बच्चा आसानी से ना कर सके, कर सकेगा लेकिन आसानी से नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये हम लोगों ने 8.1 में पढ़ा हुआ है कि उसके आखिरी जो 5-6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर तकरीबन 32 से लेके 38 तक, जहाँ पे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है, तो ये तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उसने ये क्वेश्चन बना दिया है कि आप इसको एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से करेंगे। तो इसमें एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो पहले हम खुद इसको चेक करेंगे कि एन की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो अगर हम इसको 1 के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 3 + 1 4 आ जाएगा, राइट साइड पे भी 4 आ जाएगा। 4 इज लेस देन 4, इसका मतलब 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो 1 से ऑनवर्ड 2 से लेके आगे कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसको हम केस 1 जो होगा वो 2 से शुरू करेंगे और इसी तरह बाकी स्टेप्स करेंगे। क्वेश्चन 7 देखें। ये आपका 10 चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें आपने जो 10 चैप्टर में सम और प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज पढ़े थे, तो इसका जो पहला पार्ट है sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 10.4 में मिलेगा। तो उसमें हम ये करते हैं कि जब 4 टर्म्स आ जाएं तो हम दो को कंबाइन करते हैं, पेयर करते हैं उनकी, और उसमें कंबाइन करने का ये तरीका है कि जो दो में एंगल का सम है वो सेम आ जाए। जैसे 3 थीटा और 5 थीटा का सम 8 है, लेकिन 7 थीटा और 9 थीटा का सम 16 आ रहा है। इसका मतलब जिस हालत में ये दिए हुए हैं हम इस हालत में इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसमें देखें 5 थीटा और 7 थीटा का सम 12 आ रहा है और 9 थीटा और 3 थीटा का सम 12 आ रहा है। इसका मतलब है हम दो पेयर इस तरीके से बनाएंगे कि एक पेयर में आ जाएगा sin 9 थीटा प्लस sin 3 थीटा और एक पेयर में आ जाएगा sin 7 थीटा प्लस sin 5 थीटा। ठीक है, और फिर इस पे दोनों पे सम का फार्मूला लगा के कुछ कॉमन लेंगे और अगेन एक दफ़ा फिर सम का फार्मूला लगेगा। तो 2 दफ़ा सम का फार्मूला लगने के बाद आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की फोटोकॉपी है। ठीक है, इसमें देखें सेकंड पार्ट में जो cos 5 थीटा प्लस cos थीटा है और नेक्स्ट जो है वो 2 cos 3 थीटा है। तो आप 2 cos 3 थीटा को 2 दफ़ा लिख दें, cos 3 थीटा cos 3 थीटा। तो cos 5 थीटा और cos थीटा का सम 6 आ जाएगा और 3 थीटा का सम 6 आ जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी अब इसमें सम ऑफ जो फार्मूलाज हैं, सम से डिफरेंस की तरफ जाना या सम से प्रोडक्ट फॉर्म में जाना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है 10.4 का। तो अगर आपने थोड़ी सी भी समझ के वो एक्सरसाइज की हुई है तो ये क्वेश्चन फ़ौरन आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ये वाला किया था और इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 12 चैप्टर से आया है। जो आपने 12.3 पढ़ी है, यकीनन ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी और मैट्रिक में भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं कि एक ट्री है उसका शेडो है या एक आदमी है उसके टॉप को देख रहा है या एक टावर है उसके टावर के टॉप पे कोई फ्लैग है। इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस हैं, या लैडर वाला क्वेश्चन है या काइट वाला क्वेश्चन है या एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे रियल लाइफ के एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 12.3 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे हमें ऑब्जर्वर की हाइट गिवन थी। तो यहाँ भी देखें कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी आइज़ जो है वो ज़मीन से 5 फीट हाइट पर है, यानी ये एक किस्म की आप समझ लो कि आदमी की हाइट गिवन है।
और पोस्टर जो है वो दीवार पे 8 मीटर ज़मीन से ऊपर लगा हुआ है, यानी ज़मीन से पोस्टर का जो एंड है वो 8 मीटर है और 8 मीटर से ऊपर सारा पोस्टर है 4 फीट का। तो ये टोटल जो पोस्टर तक उसकी हाइट बनती है दीवार की वो 12 फीट हो जाती है। तो यहाँ से फिर हम 5 फीट के लिहाज से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी ये सारा कुछ गिवन है, और वहाँ से ही हमने ऑपरेशन ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 21। अब ये जो प्रूव करना है ये आसान नहीं है, यानी ये कॉन्सेप्ट बेस है, एप्लीकेशन प्लस कॉन्सेप्ट, इसमें दो चीज़ें उसने शामिल कर दी हैं कि आपने पहले वहाँ से थीटा कैसे बनाना है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा थीटा आ जाएगा, तो उसको फिर किस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करेंगे तो फिर जाके हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आए। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल पेपर था, जो सेकंड मॉडल पेपर है। इसका सोल्यूशन बेटा अगर आप देखना चाहेंगे तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ से देख के जो बातें मैंने आपको बताई हैं इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 2 को थोड़ा सा गो थ्रू हल्का सा इसी तरह कर लें, तो अगर पार्ट 2 के बच्चे भी हैं तो उनको ये आइडिया हो जाएगा। मैं जल्दी से गो थ्रू पढ़ा देता हूँ। अब इसमें देखें जो पहला पार्ट है 1 माइनस कॉस 5x ओवर 1 माइनस कॉस 7x, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपने 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट किया हुआ है 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो बिल्कुल जैसे वो क्वेश्चन किया था सेम यही क्वेश्चन आप इधर भी करेंगे। इसी तरह 2 पार्ट है अ फैक्ट्री एनुअल सेल फॉर एक्स ईयर इज गिवन बाय दिस वन, फाइंड द सेल फॉर द इंडिकेटेड ईयर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एस ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 15। तो सिंपल क्या है, पहले पार्ट में 3 लिमिट पुट कर दें और दूसरे पार्ट में 15 लिमिट पुट कर दें, तो जो आंसर आएगा वही आंसर है। 3 नंबर पार्ट जो है ये 2.1 जो अपने फर्स्ट प्रिंसिपल या जिसको बाय डेफिनेशन भी हम कहते हैं या एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, तो 2.1 में इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जिसमें आप डेल्टा एक्स ऐड करते हैं राइट साइड पे और वाई की तरफ डेल्टा वाई ऐड करते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये हमने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 की 2.9 में पढ़ा हुआ है। 5 नंबर पार्ट जो है ये लॉग का डेरिवेटिव लेना है, ये हमने 2.6 में पढ़ा हुआ है। 6 नंबर पार्ट में ये लिमिट के क्वेश्चंस आ गए हैं, इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रल 2.6 है 3.6 है। फिर 7 नंबर इंटीग्रेट साइन रेज टू द पावर 5x विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी आसान है कि साइन की पावर 5x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन है, 5x की 5 शुरू में आ जाएगा, साइन की एक पावर कम हो जाएगी और फिर साइन का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। इसी तरह 7वां 8वां पार्ट जो है ये भी बिल्कुल आसान सा पार्ट है, आप इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 9 नंबर पार्ट में देखें कि ट्रायंगुलर रीजन है, आपने कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है। ये 3 ट्रायंगल्स हैं, आपने इनके वर्टिसेस फाइंड करने। तो वर्टिसेस कैसे फाइंड करते हैं, पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व करके ए पॉइंट, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करके बी पॉइंट, तीसरी और पहली को सॉल्व करके सी पॉइंट, और फिर आखिर में उसका एरिया फाइंड करना है। ये भी 4.3 में आपने पढ़ा हुआ है। आगे 10 नंबर पार्ट में देखें इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से पास करिए परपेंडिकुलर टू द लाइन, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइंस। तो ये आपने 4.4 और 4.5 इन दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, ये भी जो मॉडल पेपर नंबर 2 है ये वो है सेकंड ईयर का। फिर 11 नंबर है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। तो ये 6.2 एक्सरसाइज है, उसका बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है, यानी एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन उसी जैसा है। 12 में फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स, तो डायरेक्ट्रिसेस आप पहले फाइंड करोगे फिर उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। 13 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y इक्वल टू 8, ये भी 6.4 है उसी से, उसमें इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मौजूद हैं। फिर इसी तरह 14 पार्ट जो है ये वेक्टर से रिलेटेड है, उसमें ये कह रहा है कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, तो आपने वेक्टर की टेक्निक से ये फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह इसका जो सेक्शन सी है उसमें भी देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पीस वाइज फंक्शन है, ये 1.4 जो हमने पढ़ा हुआ है जिसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को पढ़ा था, उसकी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है,
वहाँ पे एम और एन की वैल्यूज आपने फाइंड की थी, यहाँ पे एल और एम आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपने 2.7 में पढ़ा हुआ है, जिसमें एक पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको आपने 0 प्रूव करना होता है। तो अब इसमें y3 आ गया, तो पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर उन वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में पुट करके सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल ये है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट दिस पॉइंट। ये चैप्टर नंबर 3 का 3.8 जो आखिरी एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एंड वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इसी से मिलते जुलते स्टाइल में, यानी ये तकरीबन फिजिक्स का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो हम इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं। ये समझे कॉन्सेप्ट बेस है। पहले दो जो है वो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि एज इट इज़ आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, और क्वेश्चन 5 जो है ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है लेकिन नॉलेज बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। 6 में लाइन है, एक्स एक्सिस को कट करिए पी पॉइंट पे, वाई एक्सिस को कट करिए क्यू पॉइंट पे, तो आपने इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फिर उसकी लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की, फिर पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट आर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये सारा 4th चैप्टर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी आपने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है 4.3 में कि एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ कट करती है, वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, उसकी बेस पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसने डाल दिया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 5 जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें जो आखिरी वर्ड्स प्रॉब्लम है ये उस बेस पे, यानी वहाँ से आपने अंडरस्टैंड करना है, और ये उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, इनइक्वालिटीज बनाते हैं, ये भी वही चीज़ है सारा का सारा। इसमें भी देखें आखिरी डी पार्ट में उन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर आप इसमें मैथ में बेटा पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक तो ये कि पूरा मैथ करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का मैथ है भी थोड़ा ही है, 7 चैप्टर्स हैं, और फिर उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना भी होगा। अगर आपने सिर्फ गो थ्रू किया हुआ है हल्का सा, तो फिर जहाँ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कह लें कि मैं समझता हूँ कि पास होना तो बहुत शायद टफ नहीं रहा, लेकिन अच्छा स्कोर करना मैथ में वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वो उसी सूरत में आप कर सकते हैं जब आपका नॉलेज भी अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हर चैप्टर में जहाँ जहाँ दिए हुए हैं, जैसे 5 चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 चैप्टर में भी हैं, 8 चैप्टर में भी इसमें 6 चैप्टर में भी हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ये है कि एवरेज स्कोर जैसे 50, 60, 70 तक आता है, आप उस रेंज तक आ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी मुमकिन है कि जहाँ पे इस तरह का अगर कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो वो अगर चॉइस में निकल जाए और बाकी जितने आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो सारे आपको आते हैं, तो फिर ठीक है, फिर आपका स्कोर 90s के आसपास बहुत आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है कि मॉडल पेपर को सामने रखते हुए एज इट इज़ जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, मैंने कम टाइम के अंदर कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, गाइड कर सकूं। तो अब आप अगर आपके किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से ये सेशन अब एंड ओवर है। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना रेज कीजिए हैंड, ताकि हम आपका माइक अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन पूछ सकें। और इस दौरान जो है वो सर अबरार, आपका बहुत शुक्रिया, वन ऑफ द रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद सर, प्रोफेसर अबरार सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और बच्चों को इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई। डेफिनेटली बच्चों को काफ़ी नॉलेज आज मिला होगा इसके बारे में। तो कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करना चाहे तो अपना हैंड रेज करें। स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन है, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपका माइक अनम्यूट करेंगे तो आप अपना क्वेश्चन सर अबरार से पूछ सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें। So students, thank you very much for your time, and thanks to everyone, principal, vice principals,
teachers and everyone who made this session successful today. So thanks a lot. Thank you very much. Next week, inshallah, हम दो नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ आएंगे और आपको दो नए सब्जेक्ट के बारे में इसी तरह इन्फॉर्मेशन देंगे. So thank you very much, everyone. Thanks a lot. Allah Hafiz.